This call is now taking notes. This call is now being recorded. Okay, the screen is visible, all of you. Okay, good. So in last class, I think vector topic is started, and as discussed with sir, up to vector scalar product is completed, vector product completed. Now one last topic in the vector, that is a vector triple product, and after that we will start 3D. तो देखें जरा, in vector triple product you need to remember only one thing. There is only two formulas for vector triple product. Vector triple product means three vectors होंगे, और these three vectors you need to cross multiply. That means vector multiplication only. So its formula you need to remember: A cross B cross C. So first third you need to remember first third only, ना. First third means A dot C. A dot C into remaining B vector minus remaining क्या होगा? A dot B into C vector. So this formula you need to remember. First third, तो A dot C into B vector minus remaining क्या हो गया? A dot B into C vector. Similarly, one more kind of concept है A cross B cross C. You know, in the addition, subtraction, multiplication, always two terms can be multiplied at a time only. At a time we can multiply or add two terms only. So A cross B, first we cross product A cross B, and after that cross C. So as per BODMAS, first of all bracket is solved, after that other terms. So A cross B, again same thing, first and third. So first of all first and third, so A dot C into B vector minus remaining में यहाँ क्या आ जाएगा? B dot C into A vector. तो B क्रॉस C है ना, इसमें देखो B क्रॉस C, तो यहाँ पर B और C आ जाएगा, और यहाँ A क्रॉस B है ना, तो यहाँ पर B और A आ जाएगा. तो आपको ध्यान में ये रखना A फर्स्ट एंड थर्ड. तो फर्स्ट थर्ड A dot C into B vector, remaining is B vector, minus B dot C into remaining is A vector. What is these two formulas you need to remember only for vector triple product. In the scalar triple product, I think you already discussed ki A dot B cross C, this is the STP. This is equal to A cross B dot C. These are equal, no problem. But in case of vector triple product, these are not equal. A cross B cross C, this is generally not equal to A cross B or cross C. In this case, in vector triple product, this is not possible. Both are not equal. So this is the vector triple product you need to remember simply. After that, coplanarity of 4 points. Actually, we need to discuss about the only advanced level. So objective point of view से we will discuss. तो कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट आप वेक्टर से भी देख चेक कर सकते हो, और आप प्लेन की इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो. जब अपन प्लेन पढ़ेंगे तो उसमें भी अपन ये चीज सेम टू सेम देख सकते हैं. कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, उसके अंदर वही अपने पास में लीनियर डिपेंडेंसी वाली कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा. इफ 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, तो वी कैन से इफ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, यानी कि हमारे पास में 3D है. इन दिस 3D वी हैव टोटल 4 पॉइंट्स है, ए बी सी और डी, और corresponding position vector means with respect to origin. So this is a vector, B vector, C vector or D vector. So these are the position vector.
Now corresponding to this position vector, how do we represent ki these are the coplanar? Coplanar means lies in one plane only. We need to write down x into a vector plus y into b vector plus z into c vector plus w into d vector equal to 0. If this condition is satisfied, where जो x plus y plus z plus w है, that is also equal to 0. In this case, we can say, but these itself are not 0. These itself x, y, z and w, these all are at a time not equal to 0. तो यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है. 4 पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर d वेक्टर are coplanar if and only if there exists scalar x, y, z, w. ये जो x, y और z, w है जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर से, ये सारे के सारे एट ए टाइम जीरो नहीं होने चाहिए. इफ दिस विल बिकम एट ए टाइम ऑल आर जीरो, देन तो नो प्रॉब्लम, दिस इज 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0. But if these are at a time not equal to 0 and although this term is equal to 0, then in this condition we can say these 4 points are coplanar, but not much more important this concept. ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान में रखना है. चलिए क्वेश्चन है, देखना. ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर है सच दैट बी डॉट सी इक्वल टू 0 है. तो सबसे पहले तो जो गिवन डेटा है वो आपको लिख लेना है, तो उसको अपन समझ लेते हैं. बी डॉट सी इक्वल टू 0 ये गिवन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे कि एक ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज इक्वल टू, वी कैन से बी वेक्टर 1/2 इंटू बी वेक्टर माइनस 1/2 इंटू सी वेक्टर, बी माइनस सी बाई 2 है. When we apply this vector triple product concept, कैसे लगाओगे? फर्स्ट इंटू थर्ड, तो a डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस रिमेनिंग इज a डॉट बी इंटू सी वेक्टर, और दिस शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी वेक्टर माइनस हाफ ऑफ सी वेक्टर. When you comparison both side, compare both side. When we will compare both side, then there is the b vector has coefficient of b vector is 1/2 in the right hand side, and this side coefficient of b vector in left hand side is a dot c. So we can say a dot c equal to 1/2 only. And similarly coefficient of c vector, this side coefficient of c vector is a dot b, this side coefficient of c vector is 1/2. So we can write down a dot b equal to also 1/2. So this information and one more information here given hai, that is the b dot c equal to 0. This is also one more information, and one more thing here given, b dot d equal to a dot b. So we can write down b dot d, this is equal to a dot b, or a dot b equal to 1/2. This is also we need to write down. Now what is the ask in this question? Question is say a cross b, it's dot product with c cross d, that is you need to find out. It's dot product with c cross d. तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर है जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं, फिर ये दो वेक्टर है जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है. आफ्टर दैट देयर रिजल्टेंट इज आल्सो डॉट प्रोडक्ट. तो देयर इज द टोटल 4 वेक्टर्स. हाउ टू वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट कि दिस इज द एसटीपी की वीटीपी. वीटीपी मींस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना. तो हियर नाइदर वीटीपी नॉर स्केलर एसटीपी डायरेक्टली. तो हियर वी नीड टू कन्वर्ट दिस लाइक दिस. कैसे कन्वर्ट करोगे? ये जो कंप्लीट वेक्टर है इसको अपन सी मान लेते हैं एक बार के लिए. इफ यू एज्यूम दिस इज द सी, तो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस वे कि ए क्रॉस बी डॉट सी टाइप हो गया ना, ए क्रॉस बी डॉट सी टाइप हो गया ये. अब ए क्रॉस बी डॉट सी है तो दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी है ये. तो दिस कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस b dot, sorry, a dot b cross c. This can be written as a dot b cross c. Both are same in the STP. Just we discuss above property. So a cross b dot c or a dot b cross c both are equal. So this concept we apply here. कैसे लगाओगे इसमें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल a क्रॉस b डॉट c वेक्टर टाइप का हो गया ये. तो मैं लिखूंगा a डॉट b क्रॉस or C means this complete vector. This complete vector is nothing, that is C cross D. Now
You can see this complete is the VTP. This is the VTP vector triple product. So here we apply the concept of VTP. So first of all you need to apply STP concept. STP concept के लिए 3 वेक्टर बनाने पड़ेंगे. तो ये जो C cross D है इसको मैं वापस से लिखूंगा ये. So 1/4 that's it. So now we can write down this is the A dot. Now here we need to apply VTP. तो VTP जब लगाओगे तो again first into third. क्या लिखोगे? B dot D into C vector minus B dot C remaining is B dot C into D vector. So now we need to write down all these values. So this will become A vector dot product B dot D, B dot D, B dot D, this is the B dot D. B dot D equal to A dot B, this is equal to 1/2. So that is half into C vector एक हो गया. Minus B dot C तो 0 है. Question में given है B 0. Minus this is the 0. When you multiply this will become half of A dot C only. Half of A dot C. Or A dot C value given है, that is again 1/2. 1/2 into 1/2 that is equal to 1/4. That is your answer. So this is the advanced type question in which multiple concepts are asked at a time only. VTP, STP both are combined together. Got it? So 1/4 is answer. Solution is given, so you can see. Next is the tetrahedron. You know, I hope कि all of you की what is the meaning of tetrahedron. Tetrahedron का meaning ये हो गया जैसे हमारे पास में base triangle है. This is the base triangle. A, B, C. अब जो थर्ड पॉइंट हो गया, पूरा पूरा इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है 3D. तो जो थर्ड पॉइंट होगा वो जस्ट ऊपर होगा स्पेस में, अबव द स्पेस. तो ये तो प्लेन के अंदर है ट्राइंगल. अब जो एक और पॉइंट होता है फोर्थ नंबर पॉइंट, दैट पॉइंट इज अबव दिस प्लेन, आउटसाइड ऑफ द प्लेन वी कैन से. और दिस आउटसाइड ऑफ प्लेन वी कैन राइट डाउन हियर समथिंग, so that is O. When you join all these vertices, so we are getting a geometry. That geometry is called as tetrahedron. In 2D we can represent by this way, but this point O is actually outside the plane, है ना. So lines joining the vertices of tetrahedron to the centroid of the opposite faces are concurrent, and this point of concurrence is called as center of the tetrahedron. So in a tetrahedron, straight line joining the midpoints of each pair of opposite edges are also concurrent at the center of the tetrahedron. मीनिंग ये हो गया जैसे सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन होता है, वहां से सारे पॉइंट जो होते हैं कॉन्करेंट होते हैं, उसी को अपन सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन. और तो इसमें क्या है, रेगुलर टेट्राहेड्रन का मतलब ये हो गया कि जितने भी साइड्स है ऑल साइड्स आर इक्वल, लाइक क्यूब होता है ना जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है, उसी तरह से टेट्राहेड्रन रेगुलर टेट्राहेड्रन होता है वो जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल. तो एंगल जो होता है cos इनवर्स 1/3, नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन देखते हैं अपन डायरेक्टली एक और वेक्टर का. क्वेश्चन ये, सपोज दैट पी क्यू आर आर 3 वेक्टर है इन थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है इन आर क्यू. आर क्यू मीन्स आर इंटू आर इंटू आर. आर मीन्स रियल नंबर हियर. लेट द कंपोनेंट्स ऑफ a vector S vector along P vector, Q vector and R vector be 4, 3 and 5. तो इस कॉन्सेप्ट का कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास में एक्स वाई जेड होते हैं ना, एक होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. जैसे हमारे पास में कोई एक पॉइंट हो गया पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का मतलब क्या होगा. यू नो एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई केप से. यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस इज आई केप. यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे केप. यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के केप. इस कॉन्सेप्ट का आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि लेट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एस वेक्टर अलोंग पी वेक्टर. दैट मीन्स ये जो मेरे पास में एक पॉइंट है एस मान लेता हूँ इसको, इस पॉइंट का कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है या फिर आई केप के अलोंग है उसकी वैल्यू 4 दे रखी है, और जे केप के अलोंग जो है वो इसमें 3 दे रखा है, और के केप के अलोंग जो है वो 5 दे रखा है. आप ये जो पी वेक्टर को आई केप से तुलना कर लो. लेट से पी वेक्टर जो है वो आई केप है लिख, और जो क्यू वेक्टर है वो जे केप है, और जो आर वेक्टर है उसको मैं के केप लिख देता हूँ. तो आप इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हो. इसका मतलब ये हो गया कि एस वेक्टर एक ऐसा एस वेक्टर है जिसका कंपोनेंट जो है अलोंग द आई केप दैट इज 4, अलोंग जे केप 3 है, अलोंग के केप 5 है. सो लेट्स वी कैन राइट डाउन जो एस वेक्टर है उसको मैं ये लिख दूंगा दैट इज द 4
P वेक्टर प्लस 3 Q वेक्टर प्लस 5 R वेक्टर। ये जो पी क्यू आर है उसको आप आई केप जे केप के केप से कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पर आई केप जे केप के केप नाम लिख के इसने पी क्यू आर लिख दिया है और चीज वही सेम है। तो लेट्स से एस वेक्टर इज दिस ओनली। तो ये कंपोनेंट होंगे, अलोंग द पी वेक्टर कंपोनेंट इज 4, अलोंग क्यू वेक्टर कंपोनेंट इज 3, अलोंग आर वेक्टर कंपोनेंट इज 5। ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट होगा। इफ द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर एंड अलोंग दिस वेक्टर आर एक्स वाई एंड जेड, so now this s can be also written as this is the x into component along this vector। तो मैं लिख सकता हूं x into माइनस पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस वाई इंटू अलोंग दिस वेक्टर। तो इसको भी मैं वापस आई जे के केप से कंपैरिजन करूंगा तो वाई केप माइनस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर हो जाएगा, और प्लस दिस इज जेड इंटू माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर प्लस आर वेक्टर। तो ये क्वेश्चन बेसिकली टू टाइप से दे रखा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से पढ़ें। ये पहले तो ये बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ एस वेक्टर अलोंग पी क्यू आर ओनली, वो तो 4 3 5 है तो ये आ जाएगा। लेकिन फिर ये वापस कह रहा है अलोंग ऑफ दिस सेम वेक्टर एस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर एंड अलोंग दिस वेक्टर। तो बोथ आर दी सेम लाइन, जस्ट हियर पी है, यहाँ पर माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर है और इसमें एक्स है, तो 4 रिप्लेस हो जाएगा एक्स से, गॉट इट। और आई कैप की वैल्यू ये रख देंगे हम फिर। तो टू टाइप, so you need to write down this s vector as 2 times. Now we need to compare both of these. So इसको मैं 1 नंबर मान लेता हूँ, इसको मैं 2 नंबर मान लेता हूँ। तो बाई 1 and 2, 1 and 2, अच्छा 1 and 2 से पहले एक और काम करते हैं अपन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं सेकंड वाले को। इसको मैं 2 नहीं ले रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई किया नहीं अपन ने। अच्छा पी वेक्टर में क्या आ जाएगा फिर, तो एस वेक्टर इक्वल टू मैं ये लिखूंगा दैट इज द माइनस एक्स, यहाँ से पी में वाई है प्लस वाई, और यहाँ से पी का कंपोनेंट जो है वो माइनस जेड है, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू पी वेक्टर एक हो गया, प्लस क्यू वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा फाइनली, तो क्यू का कंपोनेंट हो गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू क्यू वेक्टर लिख सकता हूँ इसमें, और प्लस जेड आर में मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू आर वेक्टर लिख दूंगा, राइट। ये एस वेक्टर आ जाएगा, इसको मैं 1 2 नंबर दे रहा हूँ। नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, by using 1 and 2. So by using 1 and 2 we can write down this is the minus x plus y minus z, this is equal to 4। इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ वापस, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में इसको और इसको क्यू वेक्टर को कंपेयर करूंगा तो मैं लिखूंगा x माइनस वाई माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू 3, इसको मैं सेकंड नंबर दे देता हूँ। और थर्ड नंबर पर ये जो मेरे पास में x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको मैं लिख दूंगा 5, दिस इज आई गिव थर्ड, राइट। तो ये इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसमें। नाउ व्हाट इज आस्क्ड हियर, so first of all we need to find out x y z value actually। तो x y z को अपन कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, तो लेट्स सी, माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, फर्स्ट 1 प्लस 2 कर देते हैं पहले तो अपन। अब नाउ यू नीड टू सोल्व दिस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस 2 कर देता हूँ मैं। व्हेन यू डू 1 प्लस 2 तो माइनस एक्स कैंसिल आउट प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के अंदर ट्वाइस ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू 7, यहाँ से जेड इक्वल टू आ जाएगा -7/2। तो एक चीज जेड की वैल्यू रिप्लेस करवा देते हैं किसी कोई भी 2 इक्वेशन में, तो रिमेनिंग यू विल सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू तो यू आर गेटिंग दिस x इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड y इक्वल टू 9/2 भी आ जाएगा, 9 आंसर आएगा फाइनली, ठीक। दिस विल बिकम 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछिए मुझसे, तो 2 इंटू 4 प्लस 9/2 प्लस -7/2, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस विल बिकम 9। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे आपको लिखने हैं इसको, हाउ टू वी विल रिप्रेजेंट दीज ऑल थिंग्स। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन देखिए, अब ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आई केप माइनस के केप, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई केप प्लस जे केप,
and this is the C vector. C vector equal to ik plus 2jk plus 3kk. If R vector is a vector such that R cross B that is equal to C cross B, ये आपको दे रखा है. यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना. इसको इधर शिफ्ट करो जरा. When you shift this side, तो we can write down R cross B minus C cross B. This is equal to 0. This is equal to 0. अब मैं इसको ये लिख सकता हूं, दिस इज द R वेक्टर माइनस C वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर इक्वल टू 0. R वेक्टर माइनस C वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर इक्वल टू 0. एक कॉन्सेप्ट आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा. कॉन्सेप्ट ये होता है कि इफ A क्रॉस B इक्वल टू 0, A क्रॉस B इक्वल टू 0, देन A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर. A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर. ये क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 0, दैट मींस थीटा इक्वल टू 0. तो A क्रॉस A एंड B वेक्टर आर कोलिनियर. सॉरी, यहां पर भी मैं यही लिखूंगा. सो दैट मींस R वेक्टर माइनस C वेक्टर जो है दैट इज द कोलिनियर विद, दिस इज कोलिनियर विद B वेक्टर, विद B वेक्टर. कॉन्सेप्ट वही है, A क्रॉस B तो A और B हो गया, यहाँ R माइनस C क्रॉस B है तो R माइनस C. दैट मीन्स यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन राइट डाउन A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर. ये अपन ने बात की थी. ये क्रॉस प्रोडक्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ते हैं कोलिनियर वेक्टर. इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर दैट मींस एक वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर. यहाँ पर भी अपन यही लिखेंगे, और R वेक्टर माइनस C वेक्टर दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मेनी टाइम्स आस्क्ड. यहाँ से हम कह देंगे R वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर. Here lambda is unknown. Lambda is unknown quantity, belongs to R, that means any real number. For now we need to find out this lambda value. For this purpose we have one more concept given, that is the R dot A equal to 0. When you apply R dot A equal to 0, R dot A means C vector plus lambda times of B vector, its dot product with A vector equal to 0. So this can be written as C dot A, और या फिर अपन C प्लस लैम्डा B की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं. अच्छा, C वेक्टर गिवन है, लैम्डा वेक्टर गिवन है. दिस इज द C वेक्टर, दिस इज प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर. C वेक्टर 1 i कैप माइनस लैम्डा, तो दिस इज द 1 माइनस लैम्डा इंटू i कैप एक हो जाएगा, प्लस दिस विल बिकम 2 प्लस लैम्डा j कैप एक हो जाएगा, और प्लस 3k कैप एक हो जाएगा. And this says dot product with A vector minus I cap minus k cap, or this is equal to 0. Now this will become minus of 1 minus lambda. Dot product, you know, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2, or plus 2 plus lambda into 0. Either j cap component any. This is the plus 3 into minus 1. This is equal to 0. When we will simplify, this will become minus 1 plus lambda plus this is 0 minus 3 equal to 0. Lambda is equal to 4 only. We will get lambda equal to 4. So if lambda equal to 4, so R vector can be written as C vector plus 4 times of B vector. Now what is the R vector? तो C vector plus 4 times of B vector होगा, तो C vector मेरे पास में I k plus 2j k 3k k पर plus 4 times this. तो ये आ जाएगा 1 minus 4 into 1. 1 minus 4 हो जाएगा 3. तो एक तो ये हो गया 1 minus 4 into I k प्लस दिस विल बिकम 2, और इधर j कैप कंपोनेंट 1 है तो 2 plus 4 हो जाएगा. दिस विल बिकम 2 plus 4 into j कैप, और प्लस 3 दिस साइड नो k कैप कंपोनेंट, तो डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन दिस इज द 3k. दैट मींस R वेक्टर इक्वल टू वी कैन राइट डाउन minus 3i कैप plus 6j कैप और plus 3k. दिस इज R वेक्टर. But still question is not completing. Question is asked what is the value of R dot B. So now R vector dot product B vector. So this is equal to minus 3ik plus 6jk plus 3kk. और इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है B के साथ माइनस I प्लस J के साथ प्लस 0k के साथ.
तो कंपोनेंट्स आर मल्टीप्लाई -3 -1 तो +3 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 ओनली। आई थिंक 9 इज आंसर। गुड। तो ये कॉन्सेप्ट है, या फिर आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वीटीपी में लेके भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। बट वीटीपी वाला कॉन्सेप्ट, मतलब वीटीपी का कॉन्सेप्ट ये हो गया कि बोथ साइड आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए ए वेक्टर से, ये सॉल्यूशन दे रखा मैंने, बोथ साइड यू विल मल्टीप्लाई विद क्रॉस प्रोडक्ट। बट उसमें फिर आपको ये ए क्रॉस सी क्रॉस भी आपको सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए क्रॉस सी क्रॉस बी की वैल्यू ये आएगी फिर उसमें, ये आपको सेपरेटली निकालना होगा, तब आप सोल्व कर पाओगे। यानी कि इसके बाद की कैलकुलेशन सॉल्यूशन में नहीं दे रखी है, ये यहाँ पर भी कुछ बहुत सारी कैलकुलेशंस होगी, वो कैलकुलेशन आप करोगे तब आपका आंसर आएगा। ठीक, तो उससे अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट अपने ठीक रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और है, ये भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ही है। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कैसे, यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी गिवन है और ये गिवन है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ए क्रॉस दिस वेक्टर प्लस, अब देखिए दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर बोथ आर सेम है, बोथ आर सेम वेक्टर, so can we written as let us consider c vector equal to 2ik plus 3jk plus 4kk, we just assume, so this can be written as a cross c equal to c cross b। अब ये जो c cross b है, this can be written as a cross c equal to minus of b cross c, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी चेंज, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0, दिस कैन बी रिटन एज a वेक्टर प्लस b वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट c वेक्टर इक्वल टू 0। वापस से वही कॉन्सेप्ट बन रहा है, देयर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू 0, दैट मींस वी कैन से a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज कोलिनियर विद c वेक्टर, इज कोलिनियर विद c वेक्टर। c क्रॉस b दे रखा था, मैंने इसको माइनस b क्रॉस c कर दिया, तो ये a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c, c वेक्टर कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग a प्लस b हो जाएगा, तो a प्लस b क्रॉस c, a प्लस b कोलिनियर है विद दिस, तो वी कैन राइट डाउन a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ c वेक्टर। अब लैम्डा टाइम्स ऑफ c वेक्टर का मतलब क्या होगा, सो वी कैन राइट डाउन दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b गिवन है यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b। So now we apply this concept. The magnitude of a plus b, that is equal to magnitude of lambda c vector. That means mod of lambda into magnitude of c vector. और magnitude of c vector अपन यहाँ से निकाल देंगे। Magnitude of c vector, this will become square root of 2 square plus 3 square plus 4 square होंगे। So this is also I think square root of 29 ही आ रहा होगा ये भी। So we can write down this is the square root of 29 equal to mod of lambda square root of 29. So we can write down mod of lambda equal to 1. So mod of lambda equal to 1, so lambda equal to plus minus 1. But still question is not complete. Lambda equal to plus minus 1 हो गया. So we can write down a plus b. ये हमारे पास में एक रिलेशन आया था a plus b equal to lambda times of c. A plus b equal to we can write down plus minus of c vector. That means plus minus of what is c vector? C vector is that only 2ik plus 3jk or plus 4kk. So this is the a vector plus b vector only. Now question is asked what is the dot product with this. तो फाइनली अपन आंसर बता देते हैं। तो now this is the now NOW now. तो a प्लस b, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है -7ik प्लस 2jk और प्लस 3k के साथ। a वेक्टर प्लस b वेक्टर तो ये है, दिस विल बिकम प्लस माइनस ऑफ 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk, डॉट प्रोडक्ट -7ik प्लस 2jk प्लस 3kk। यू विल सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट आंसर, प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, 2 7 जा -14, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 3 2 जा 6 प्लस 12, तो 18 प्लस -4 आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। नोट इट, तो आंसर इज प्लस -4। क्वेश्चन इज आस्क्ड देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस इज, तो मल्टीपल चॉइस में +4 और -4 दोनों ही हो सकता है,
और अगर सब्जेक्टिव हो तो फिर +4 ही लिखेंगे ऑब्वियसली न्यूमेरिकल आंसर में, तो दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। W वेक्टर गिवन है i k प्लस j k माइनस 2 k u एंड v वेक्टर आर टू वेक्टर सच दैट u क्रॉस v इक्वल टू w वेक्टर है एंड v क्रॉस u इक्वल टू u है। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली ये है कि u वेक्टर आपको गिवन है, u वेक्टर को मैं अल्फा बीटा गामा कंपोनेंट से लिखूंगा और u क्रॉस v इक्वल टू w वेक्टर है, राइट, और w वेक्टर भी गिवन है मुझे। तो दो तीन चीजें अपन देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो इधर ही कर देता हूं मैं। सबसे पहले तो u क्रॉस v इक्वल टू w वेक्टर है, तो फ्रॉम दिस वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ w वेक्टर। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ w वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ w वेक्टर आप यहां से निकाल सकते हो। दैट मीन्स वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस विल बिकम √6। वी कैन से magnitude of u cross v this is equal to √6 only। इसको एक बार यहीं पढ़ा रहने दो, 1 नंबर देखो, ये हमने एक रिलेशन निकाला। एक और इंफॉर्मेशन मेरे को दे रखी है कि जो v क्रॉस w है दैट इज इक्वल टू u वेक्टर। अब यहां पर आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर देता है। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज गिव परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये मुझे लगता है आपको राइट हैंड थंब रूल का पता होगा। राइट हैंड थंब रूल में अपन फिंगर्स को रोटेट करते हैं, तो जो थंब होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो थंब हमेशा प्लेन के आउटसाइड होगा। अगर थंब प्लेन के आउटसाइड होगा इसका मतलब ये हो गया कि ये जो u वेक्टर है ना, ये u वेक्टर v वेक्टर और w वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर है। वी कैन राइट डाउन दैट मीन्स u वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ v वेक्टर एंड w वेक्टर। क्या ये चीज समझ में? v क्रॉस w इक्वल टू u वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज गिव परपेंडिकुलर वेक्टर, so that means u vector is always perpendicular to both v vector and w vector। अब अगर u वेक्टर परपेंडिकुलर है v वेक्टर और w वेक्टर को, अब मैं इसको वापस उठा रहा हूं यहां से, ये फर्स्ट नंबर को वापस ले आइए। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v दे रखा है दैट इज इक्वल टू √6। और u क्रॉस v का फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इनटू साइन थीटा, और ये जो थीटा होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि u वेक्टर परपेंडिकुलर है v वेक्टर के। और मैग्नीट्यूड ऑफ n के क्रॉस प्रोडक्ट आप सबको पता है। अब साइन 90 डिग्री 1 हो गया, मैग्नीट्यूड n के यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और रिमेनिंग मेरे पास में u डॉट v बच रहा है। तो यहां से मैं ये लिख दूंगा u वेक्टर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √6। ये हमारे पास में एक और रिलेशन आ गया, इसको भी 2 नंबर दे देता हूँ, इसको भी एक बार पढ़ा रहने दो यहीं पे, आगे चलते हैं अपन। नाउ तो ये चीज हो गई, v क्रॉस ये हो गया, मैग्नीट्यूड u क्रॉस v हो गया, v क्रॉस w इक्वल टू u वेक्टर हो गया, u वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया दोनों के। और कहाँ चले और कहाँ चले, w वेक्टर ये है ही √6 इक्वल टू u क्रॉस v √6, ठीक है। सो नाउ एक चीज और बन रही है यहाँ पर, वो मैं थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूँ क्या हो गया। वो मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर u क्रॉस v क्रॉस w दैट इज इक्वल टू u वेक्टर, और u वेक्टर ये दे रखा है, u वेक्टर इस परपेंडिकुलर हो गया,
वी डब्ल्यू। चलिए यहाँ पर आइए, एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट रह गया क्या? हाँ ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेट्स सी। हाँ यहाँ पर आ जाइए वापस से। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। यू क्रॉस वी वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू वेक्टर है। यू क्रॉस वी इक्वल टू डब्ल्यू वेक्टर है, दैट मीन्स यही सेम टू सेम चीज इसमें भी बोल सकते हैं कि जो डब्ल्यू वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू बोथ यू वेक्टर एंड वी वेक्टर। बोथ यू वेक्टर एंड वी वेक्टर, तो वही चीज सेम टू सेम हो जाएगी, यानी डब्ल्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर ऑल्सो। सो नाउ अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर की बात करूं, तो नाउ बाय यूजिंग सेम टू सेम वही वी क्रॉस डब्ल्यू इक्वल टू यू वेक्टर, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डब्ल्यू वेक्टर, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉस वी निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू वेक्टर हो जाएगा इनटू अगेन साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये अपन ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो डब्ल्यू वेक्टर है वो वी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। डब्ल्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड वी वेक्टर है और डब्ल्यू वेक्टर की वैल्यू √6 दे रखी है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू वेक्टर इनटू साइन 90 डिग्री 1 हो गया इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर हो गया। अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर की वैल्यू है ये उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। व्हेन यू पुट हियर तो देन वी विल गेट दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इनटू √6 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर दैट इज इक्वल टू √6। √6 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, तो इसका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, पी का सेकंड होगा, तो ए बी सी में से कुछ भी हो सकता है। अभी तक आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा और। नाउ नेक्स्ट 3 इक्वेशंस गिवन है, माइनस टी एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एल्फा माइनस टी बीटा। अच्छा यू वेक्टर तो गिवन है ना। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, यू वेक्टर इक्वल टू एल्फा आई के प्लस बीटा जे के प्लस गामा के है। यू नो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यू वेक्टर जो है वो तो वी क्रॉस डब्ल्यू है, वी क्रॉस डब्ल्यू है, और वी और डब्ल्यू जो है अदर वेक्टर है। ऑब्वियसली वी कैन से दिस इज अ नॉन जीरो वेक्टर, इज ए नॉन जीरो वेक्टर। ये हमारे पास में एक नॉन जीरो वेक्टर माना जाएगा, क्योंकि यू वेक्टर जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, कोई दो प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू जीरो कभी नहीं आ सकती। अब कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, 3 इक्वेशन गिवन है, माइनस टी एल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू 0, दिस इज 1 नंबर इक्वेशन ले लेता हूँ, और एल्फा माइनस टी बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 दैट इज सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन जो दे रखी है वो एल्फा प्लस बीटा माइनस टी गामा इक्वल टू 0। वैसे देखोगे तो तीनों इक्वेशन सेम टाइप की लग रही है, टी की वैल्यू ऐसे चेंज हो रही है। ये जो एल्फा बीटा गामा है दीज आर द कंपोनेंट ऑफ यू वेक्टर, तो ये वो लीनियर इक्वेशन टाइप की नहीं बन रही क्या। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। दीज आर दी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन होने चाहिए, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो अगर इनके नॉन जीरो सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि यू वेक्टर इक्वल टू एल्फा आई के प्लस बीटा जे के प्लस गामा के है, और ये एक नॉन जीरो वेक्टर है। यू वेक्टर जो है एक नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर इसका मतलब एल्फा बीटा गामा जीरो नहीं हो सकते, और एल्फा बीटा गामा जीरो नहीं है तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, और उसका नॉन जीरो सॉल्यूशन हो गया, यानी कि एल्फा बीटा गामा जीरो नहीं होगा। सो फिर अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल यू नो डेल्टा दैट इज द डिटर्मिनेंट, जब अपन फाइंड आउट करते हैं दैट इज द माइनस टी 1 माइनस टी 1 और 1 माइनस टी, दिस इज इक्वल टू 0, डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट उसमें अपन पढ़ते हैं। आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना,
When you solve this determinant, we are getting this kind of determinant minus t cube plus 3t plus 2 equal to 0. जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 होना चाहिए। तो यहां से हमें दो वैल्यू मिलती है। तो हेयर t इक्वल टू या तो 2 होगा और t इक्वल टू -1 होगा। t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू -1। हिट एंड ट्रायल से देख लो, t इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक इक्वेशन आ जाएगी और फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, तो उसे सॉल्व कर लो। अब अपन क्वेश्चन में वापस आते हैं। फर्स्ट नंबर, इफ t इक्वल टू 2, अगर t की वैल्यू 2 हो जाए तो मैं ये कह सकता हूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो -2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन रहेगी। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। और अल्फा प्लस बीटा -2 गामा इक्वल टू 0, ये तब है जब t इक्वल टू क्या हो जाए, 2 हो जाएगा। तो उस केस में अपन ये बता देंगे। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो इन तीनों इक्वेशन को जब आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से देखोगे ना, आप सोल्व भी कर सकते हो इसको, यू कैन सोल्व ऑल्सो। सोल्व कैसे करोगे कि वी विल एज्यूम कि लेट गामा इक्वल टू टी है। गामा इक्वल टू टी होगा तो -2 अल्फा प्लस बीटा प्लस टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अल्फा -2 बीटा प्लस टी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ना दिस इज फोर्थ नंबर इक्वेशन और दिस इज फिफ्थ नंबर इक्वेशन। और when you simplify here substitution elimination concept when you apply, तो we are getting alpha equal to beta equal to also t, और that is equal to gamma। और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी आप देख सकते हो -2 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से भी बीटा प्लस बीटा -2 बीटा इक्वल टू 0 हो सकता है। तो हेयर वी कैन से कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा आ जाएगा। अब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो जाएगा, तो सो वी कैन से यू वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा आई के प्लस अल्फा जे के प्लस गाम अल्फा के के। अब इस क्वेश्चन में शायद मैग्नीट्यूड ऑफ क्या पूछा इसने, इफ अल्फा इक्वल टू √2 तो t प्लस 3 इज इक्वल टू, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां से मैं एक मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर आप यहां से निकाल सकते हो। कहां गया मैग्नीट्यूड यू वेक्टर? हाँ, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू इनटू √6 है ये। तो वी कैन राइट डाउन दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर का स्क्वायर इनटू √6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर हो गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर का स्क्वायर 1 है, 1 इंटू 6 इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर। वी कैन राइट डाउन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 दैट मींस अल्फा इक्वल टू √2, प्लस माइनस होता है एक्चुअली। तो अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ ये फोर्थ वाला ऑप्शन देखो एस नंबर, अल्फा इक्वल टू √2 देन t प्लस 3 इज इक्वल टू। अगर अल्फा इक्वल टू √2 होगा, इफ अल्फा इक्वल टू √2, तो ये क्वेश्चन अपन ने यहां से स्टार्ट किया था। देखो इफ t इक्वल टू 2, तो जब t इक्वल टू 2 आएगा तब अल्फा √2 आएगा। इफ t इक्वल टू 2 देन अल्फा इक्वल टू √2। तो अगर अल्फा √2 है तो t इक्वल टू 2 हो गया एंड t इक्वल टू 2, तो t प्लस 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो t प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो t प्लस 3 की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी s का 5 आ जाएगा। तो s का 5, s का 5, p का 2, p का 2, a और b में से दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन और मैच करवा देते हैं फिर अपन छोड़ेंगे इसको। फिर बोल रहा है अल्फा इक्वल टू √3 देन बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर, और एक गामा स्क्वायर की वैल्यू। तो नाउ सेकंड केस होगा इफ t इक्वल टू -1। इफ t इक्वल टू -1 देन इक्वेशंस क्या बन जाएगी? देन इक्वेशंस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 ओनली। तीनों इक्वेशन यही रहेगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। भाई t इक्वल टू -1 है ना, तो t इक्वल टू -1 तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। एंड दिस इज द वन नंबर। एंड सेकेंड थिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर का स्क्वायर आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर का स्क्वायर इनटू
√6 का स्क्वायर आ जाएगा ये। और मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर स्क्वायर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ये और एक रिलेशन मेरे को दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिस, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मुझे गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, अल्फा इक्वल टू √3 की बना, राइट, ओके। अब जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में आ जाइए, सेकंड और थर्ड दोनों में क्यू और आर दोनों में अल्फा इक्वल टू √3 दे रखा है, अल्फा इक्वल टू √3 में पुट कर देता हूँ यहाँ पे। इफ अल्फा इक्वल टू √3, अल्फा इक्वल टू √3 तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू -√3 हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू -√3 होगा तो बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर जो होगा वो -√3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 होगा। तो ये एक और रिलेशन आ जाएगा मेरे पास में, तो बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, तो इस आर का 4 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्यू ऑप्शन को कैसे मैच करोगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ से मैं बीटा इक्वल टू ये कह सकता हूँ माइनस ऑफ गामा प्लस √3, ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी और अल्फा √3 देगा, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज द गामा प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेना और गामा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो गामा इक्वल टू शायद तक 0 और -√3 आ रहा होगा, यहाँ से जब सोल्व करोगे ना तो गामा इक्वल टू 0 और गामा इक्वल टू -√3, फिर आप आगे मैच कर लेना। तो गामा स्क्वायर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, गामा स्क्वायर की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो गामा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा एक। अच्छा, गामा स्क्वायर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, बट हमें ऑप्शन भी मैच करना होता है, तो P का 2 Q का 4, अगर आप गामा स्क्वायर की वैल्यू 3 लेते हो, इफ यू विल टेक गामा स्क्वायर इक्वल टू 3, तो अगर गामा स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो फिर आपके पास में R का भी 4 होना चाहिए, तो Q और R दोनों में 4, Q और R दोनों में 4 में कोई ऑप्शन नहीं है, बट Q का 1 दे रखा है, Q का 1 एक ऑप्शन दे रखा है, तो हम A को टिक करेंगे। अदरवाइज फिर अगर Q का 4 भी आता तो यहाँ पर 1,4 दोनों ही हो सकते हैं, बट एक ऑप्शन दे रखा है 1, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट है, गामा स्क्वायर की वैल्यू 3 भी हो सकती है, तो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने यूज में लिए, एक तो ये कॉन्सेप्ट हमने इंपॉर्टेंट यूज में लिया है और एक ये टर्म हमने इंपॉर्टेंट यूज में लिया है। यू क्रॉस डब्ल्यू इक्वल टू यू वेक्टर है, तो यू वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये अगर आपके पास में एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते हैं ना वेक्टर प्रोडक्ट के, तब आप ऐसी चीजें सोच पाओगे, अदरवाइज तो सोच ही नहीं पाते ना कि ये परपेंडिकुलर होगा तो एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री ले लेंगे, और अगर आप एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री नहीं लोगे तो फिर आपके पास ये रिलेशन नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो ये आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये जो दो वैल्यू आपको क्रॉस प्रोडक्ट में दे रखे इसी से आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्यों दे रखा है इसने एक्चुअली, गॉट इट। फिर आगे तो फिर वो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू -1 में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी नॉन जीरो सॉल्यूशन से। तो ये हमारे पास में वेक्टर का कॉन्सेप्ट है जो हमने क्लियर किया है आज अभी तक। अच्छे अच्छे क्वेश्चन वेक्टर से भी पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन 3D से भी पूछे जाते हैं। अब 3D के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 3D के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन अभी तक जेईई एडवांस के अंदर जो पूछे गए हैं वो प्लेन और लाइन को रिलेट मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें प्लेन भी है और लाइन भी है। ये सिलेबस दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डायरेक्शन, कोसाइन डायरेक्शन, रेशियो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, equation of plane, distance point plane, angle between two line, angle between two plane, angle between line and plane, coplanar lines, like that only। तो ये तो सिलेबस है, देख लेना इसको। अब इसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब डायरेक्टली ये कोई क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन जो आते हैं एक तो लाइन और प्लेन को मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं इनमें से, उसमें लाइन भी दी जाएगी प्लेन भी दिया जाएगा एडवांस लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो मिक्स क्वेश्चन आना है, एक या दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं मैक्सिमम 3D में से, ओनली 3D। और वेक्टर को भी कंबाइन कर दो तो कभी कभार 3 क्वेश्चन भी बने हुए हैं वेक्टर 3D से। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ऑब्वियसली बात है कि जो 3D है पूरा पूरा इमेजिनेशन का चैप्टर है ये, आपको स्पेस के अंदर इमेजिन करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका रूम है ना उसके अंदर आपको एक लाइन को एज्यूम करना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि एक लाइन जा रही है, जैसे फ्लाइट चलती है ना, फ्लाइट की तरह आप एज्यूम कर लीजिए जैसे फ्लाइट की जैसे ये लाइन हो गई है, एक स्पेस के अंदर है वो जस्ट। या फिर
और अगर प्लेन की बात करें तो एक वॉल जो आपके पीछे की जो वॉल है, आपके फ्रंट की जो वॉल है, उस वॉल को आप प्लेन इमेजिन कर सकते हो। ये पूरा पूरा इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अभी फेस टू फेस हम नहीं है, अदरवाइज तो मैं आपको इमेजिनेशन करवा भी देता इसको, लाइन वगैरह कैसे चल रही है। अभी आपको वहां बैठे बैठे खुद इमेजिन करना होगा। तो पहला टॉपिक वही है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह, तो ये सब तो आपको पता ही है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। एक तो सिंपल फॉर्मूलाज होता है और एक होता है कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं सिंपल फॉर्मूला की बात करें तो इफ कोई वेक्टर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आर वेक्टर इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, ये मैंने कोई वेक्टर लिख दिया, तो ये जो ए कोमा बी कोमा सी है, इनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज। और जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनको एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर, वैसे आप लोगों को पता है डायरेक्शन कोसाइंस आर, इनको लिखा जाता है कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। ये जो कोस एल्फा होता है इसको एल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एल इक्वल टू कोस एल्फा। यानी डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल इक्वल टू कोस एल्फा होता है, एम इक्वल टू कोस बीटा होता है, और जो कोस गामा होता है उसकी वैल्यू एन होती है। वी कैन से दिस इज एन इक्वल टू कोस गामा। एल इक्वल टू कोस एल्फा, इसकी जब वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओनली। सिमिलरली एम की वैल्यू जब निकालोगे तो दिस इज द कोस बीटा, कोस बीटा इक्वल टू बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन इक्वल टू होता है कोस गामा, कोस गामा इक्वल टू होता है सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। तो एल एम एन दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ओनली। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायरेक्शन कोसाइन। ये तो चलो ठीक है, फॉर्मूलाज हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होगा। डायरेक्शन कोसाइन का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कोई लाइन है एल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी कि अब इसने एक्स एक्सिस को इधर ले लिया, मैं इधर ले लेता हूँ, इसको देखना इधर एक बार। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस हमेशा प्लेन के बाहर होती है हमेशा, दिस जेड एक्सिस इज आउटसाइड ऑफ प्लेन, ऑल ऑफ यू नो। अगर मान लीजिए कोई भी मेरे पास में एक लाइन है, इफ वी हैव वन लाइन, सर if I have this kind of line L, this is the line L, or this line is makes an angle of alpha, beta and gamma with respect to x axis, y axis or z axis। यानी कि this line is makes an angle with x axis that is alpha, this line makes an angle of beta with y axis, और this line is makes an angle of gamma with z axis। ये गामा एंगल है। ये एक्चुअली में ये लाइन आउटसाइड है, जो एक्स एक्सिस है दैट इज आउटसाइड ऑफ प्लेन। इसको इमेजिन करो, आप लोग इमेजिन करोगे तभी आपको 3D समझ में आएगा, वरना 3D समझ में आता नहीं है जनरली। डायरेक्ट फॉर्मूले रट के अपन 3D के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इमेजिन कर पाओगे तो ही आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये लाइन है स्पेस के अंदर, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ से जो कोस एल्फा है, तो मैंने यही बोला यहाँ से कि अगर कोई एंगल मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली is called the direction angle। ये एंगल डायरेक्शन एंड कोसाइन ऑफ दीज एंगल, दैट मींस कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यहाँ पर इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो आपको सभी को अच्छे से पता है। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट मींस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन जब आप निकालोगे तो मैं ये कहूंगा एक्स एक्सिस में कोस 0, कोस 90, कोस 90। अब ये 0 कोस 90 वगैरह ये क्या हो गए, इसको देखना जरा। तो ये 1, 0, 0 होगा। अब कोस 0 का मतलब क्या हुआ, अगर एक्स एक्सिस के बात बात करूं तो ऑन दी एक्स एक्सिस एल्फा की वैल्यू तो 0 डिग्री होगी। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, वो 0 डिग्री बनाएगी। लेकिन जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, दैट इज 90 डिग्री। और जो एक्स एक्सिस है वो जेड एक्सिस के साथ भी कितना एंगल बनाएगी, दैट इज 90 डिग्री। तो एल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू, एल्फा 0 हो गया, बीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और गामा भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा इस केस में। तो डायरेक्शन कोस साइंस क्या हो जाएंगे, कोस 0, कोस 90, तो 1, 0, 0। सिमिलरली वाई एक्सिस में करोगे तो एल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और गामा की वैल्यू अगेन 90 डिग्री। और जब अपन इसमें बात करेंगे जेड एक्सिस के साथ में, तो एल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एंड गामा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए अपन जब 2D के अंदर हम बात करते हैं, तो जैसे अपन जैसे देखते हैं ना 2D के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है पी, और ये डिस्टेंस मान लीजिए आर है, और ये एंगल एल्फा है। तो जब अपन कंपोनेंट लेते हैं तो आर कोस एल्फा, आर साइन एल्फा, तो व्हेन वी विल टेक दिस कंपोनेंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे ये कंपोनेंट हो जाएगा आर कोस एल्फा, क्योंकि ये एंगल एल्फा बना रहा है। और वाई एक्सिस के साथ में ये जो लाइन है वो बीटा एंगल बना रही है। तो ये जो कंपोनेंट होगा इसका अलोंग दी वाई एक्सिस, दिस विल बिकम कोस आर कोस बीटा, आर कोस बीटा। और सिमिलरली इस लाइन का जेड एक्सिस के अलोंग यहाँ पर मैं 3D के अंदर बता नहीं सकता, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं आर कोस गामा। ये 3D के अंदर है, आउटसाइड ऑफ द प्लेन। यानी पी का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आर कोस एल्फा, आर साइन एल्फा, सॉरी आर कोस बीटा, आर कोस गामा। तो ये मैंने थर्ड पॉइंट, सॉरी सेकंड पॉइंट है। ओपी एक लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन विच इज डायरेक्शन कोसाइन आर कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा, यानी एल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है लाइन। तो उस केस में तो डिस्टेंस ओपी इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज आर ओनली। तो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट पी के होंगे वो आर कोस एल्फा और कोस बीटा आर कोस गामा हो जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। आर वेक्टर जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर एल आई केप एम जे केप एन के केप हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर आप मेरे पास में कोई दो लाइन है, इफ वी हैव two lines, sorry, if we have one line and that line is passing through 2 points, one point is px1 comma y1 comma z1 और one point is qx2 comma y2 comma z2। तो जब आप पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करते हो, ये पी क्यू वेक्टर ये आ जाएगा x2 माइनस x1 i के, y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 k के। ये पी क्यू वेक्टर आ गया, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे यहाँ से। सो डायरेक्शन रेशियोज आर, तो x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 और कॉमा z2 माइनस z1, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। ये सारे बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक आप लोगों को आगे की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वगैरह वो कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ये डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो किसी भी लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, क्योंकि ये मेरे पास में a बन जाएगा, x2 माइनस 1 a i के, b j के और c k के। तो a इक्वल टू x2 माइनस x1, b इक्वल टू y2 माइनस y1, c इक्वल टू z2 माइनस z1, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। जब आप डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो फिर उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा डायरेक्टली x2 माइनस x1 अपॉन डिस्टेंस pq। गॉट इट। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल लिया मैंने
जैसे डायरेक्शन रेशियो 3 1 - 2 है तो डायरेक्शन कोसाइन 3/3² + 1² - 2² 1/this, तो 3/√14 1/√14 - 2/√14, ये सिंपल एग्जांपल होगा। डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो तो एल इक्वल टू मैंने बताया था a/√(a² + b² + c², m इक्वल टू b अपॉन हो जाएगा, n इक्वल टू c अपॉन हो जाएगा। तो ये उस हिसाब से डायरेक्टली एक सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ये डायरेक्ट वो फॉर्मूला हो गया एल इक्वल टू दिस। हाँ, यहाँ पर आ जाइए। अगर मेरे पास में दो लाइन्स है अलग अलग, इफ वी हैव टू डिफरेंट, आगे मैं वापस यही कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। मान लीजिए एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। L1 लाइन है, उसके जो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है dr है वो a1 b1 c1 है, इसके डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 है। तो जो एंगल होगा इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा वी विल फाइंड आउट बाय यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट एज ए डॉट प्रोडक्ट। जो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है वही एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा। तो यही cos थीटा इक्वल टू a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 डिवाइडेड बाय √a1² a2² b2² हो जाएगा। तो आगे में इक्वेशन ऑफ लाइन जब बात करेंगे तो उसके इसमें अपन इसी कॉन्सेप्ट को वापस लेके आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन देखिए जरा, ए बी सी जो ट्राइंगल है, ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा है। इफ द मीडियन थ्रू ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस, इक्वली इंक्लाइंड है इसका मतलब एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड है, एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड है इसका मतलब हो गया एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है। एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, दैट मींस कोस एल्फा इक्वल टू कोस बीटा इक्वल टू कोस गामा है, और कोस एल्फा इक्वल टू कोस बीटा इक्वल टू कोस गामा है, दैट मींस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, यानी डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल। यहाँ से तो अपन ये कहेंगे एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, बट एल इक्वल टू a/√a² b² b अपॉन दिस c अपॉन दिस, वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दैट मींस वी कैन से डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल, डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल। ये तो हमने इस कॉन्सेप्ट से ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट निकाला है इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, उससे हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेरे पास में ट्राइंगल है, लेट अस कंसीडर दिस काइंड ऑफ ट्राइंगल। कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 3, 5, कोऑर्डिनेट नंबर बी दे रखा है -1, 3, 2, और कोऑर्डिनेट नंबर सी दे रखा है मेरे को लैम्डा, 5, म्यू। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ द मीडियन थ्रू ए से पास आउट होने वाला एक मीडियन है, ये कुछ इस तरह से मीडियन है। मीडियन आप सबको पता है कि ये मिड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। मीडियन मींस मिड पॉइंट। ये जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप इजीली निकाल सकते हो, कैसे? लैम्डा -1/2, 3 + 5/2 तो 4, 2 + μ/2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मीडियन। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस इज द एम लैम्डा -1/2, ये लिख देता हूं। तो दिस इज द मीडियन, दैट मींस मिड पॉइंट। दिस मिड पॉइंट विल बिकम लैम्डा -1/2, 5 + 3/2, that means 4, 2 + μ/2 only, that's it. This is the AM। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो मीडियन है वो इक्वली इंक्लाइंड है, तो मीडियन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ मीडियन AM, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ मीडियन AM। इसके डायरेक्शन रेशियोज जब निकालोगे तो दिस इज द लैम्डा -1/2 और -2 हो जाएगा, 4 - 3, 2 + μ/2 -5 हो जाएगा। और वी कैन राइट डाउन दिस इज द लैम्डा -5/2 हो गया क्या, 1, 2 -10 करोगे तो ये म्यू -8/2 हो गया यहाँ से। गॉट इट? नाउ वी अप्लाई ए इक्वल टू, और इसको मैं ए बी सी लिख रहा हूँ ना, इक्विवेलेंट टू a, b, c, यानी a की वैल्यू ये हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, और ये c की वैल्यू हो जाएगी। नाउ बाय यूजिंग a इक्वल टू b इक्वल टू c, a इक्वल टू b इक्वल टू c हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्यों ले रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा लैम्डा -1/5/2, लैम्डा -5/2 दिस इज इक्वल टू 1 इक्वल टू म्यू -8/2। आप लोग इसको सिंप्लीफाई करने लेना, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2 + 5 = 7, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 7 और 10 शायद आंसर आ रहा होगा। गॉट इट?
क्वेश्चन इज आस्क्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन। तो ये एक क्वेश्चन इस तरह का आपके पास सिंपल क्वेश्चन बन सकता है अगर कोई पूछना चाहे तो ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन में। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए। ओनली वी हैव नीड टू थिंग्स। वी नीड ओनली टू थिंग्स। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। नीड ओनली टू थिंग्स। व्हाट आर दीज टू थिंग्स? वन नंबर, वन पॉइंट ऑन द लाइन, वन पॉइंट ऑन द लाइन। तो एक तो आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिएगा, और सेकंड जो पॉइंट, सेकंड थिंग दैट इज वी नीड, दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन का मतलब ये हो गया, और दैट मीन्स वेक्टर पैरेलल टू लाइन, वेक्टर पैरेलल टू लाइन। ये वही सेम टू सेम 2D के अंदर होता है ना, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। वहां पर आपको स्लोप और पॉइंट चाहिए, यहाँ पर आपको डायरेक्शन रेशियोज और वन पॉइंट ऑन दी लाइन इज रिक्वायर्ड। अब लाइन की इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अब जैसे मेरे पास में ये एक लाइन है ए पी, एल नंबर लाइन है जो मैंने यहाँ ले रखी है, और कॉन्सेप्ट ये है कि लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट ए। अब ये जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, पॉइंट तो ए है, तो लेट वन पॉइंट ऑन लाइन, ऑन लाइन दैट इज ए को मैं लिख रहा हूं एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, एंड करेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसका? अगर पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पीवी, पीवी मीन्स पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल ए वेक्टर, दैट इज एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के। अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना होता है। एंड लेट ए पैरेलल वेक्टर, तो लेट ए पैरेलल वेक्टर इज बी वेक्टर, और बी वेक्टर को मैं ले लेता हूं ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, यानी ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज होगी, और पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर हो गया। अब जब आप इस लाइन को बनाओगे तो लाइन कैसे बनेगा? और ये पॉइंट एक पी है, ये जो पॉइंट पी है ये एक वेरिएबल पॉइंट होता है जिसको मैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा? लेट ए वेरिएबल पॉइंट पी, वेरिएबल पॉइंट पी, वेरिएबल पॉइंट पी को मैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड लिख दूंगा, एंड करेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर इज ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर इक्वल टू मैं लिख दूंगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एपी वेक्टर, अब जो बी वेक्टर ये तो पैरेलल वेक्टर है ना, एपी वेक्टर पैरेलल हो जाएगा बी वेक्टर के। तो सिंस एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, एपी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट मींस एपी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और एपी वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूं, ये जो ओपी वेक्टर होता है इसी को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज आर वेक्टर ओनली। मैं ये लिख सकता हूँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अच्छा एक लाइन और लिख देता हूँ, दैट मीन्स ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आप लोगों को सिर्फ यही लाइन ध्यान में रखनी है एक, तो दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये सब मैंने यहाँ लिख रखा है कि लेट दी, ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन कौन सी है? तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन चाहिए, यहाँ फॉर्मूला लेने का। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन
दैट इज द आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। यहाँ पर ए वेक्टर क्या है, गिवन पॉइंट ऑन लाइन, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट ऑन लाइन। और जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर क्या है, दिस इज द पैरेलल वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन होती है। जब कार्टेशियन फॉर्म, इसी लाइन को आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इस लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप वैल्यू पुट कर दो एक्स आई के वाई आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर की। व्हेन वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस गिवन इक्वेशन, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर में, तो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के वाई जे के जेड के, ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस। तो मैं ये लिख सकता हूँ एक्स माइनस एक्स वन आई के प्लस वाई माइनस वाई वन जे के और प्लस जेड माइनस जेड वन के। और दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो लैम्डा ए आई के, लैम्डा बी जे के, लैम्डा सी ए के। व्हेन वी विल कंपेयर बोथ साइड, तो कंपेयर करोगे तो मैं ये कहूंगा एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा ए, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा बी और जेड माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा सी। यहां से लैम्डा को रिमूव कर देते हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू लैम्डा, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू लैम्डा और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। दैट मीन्स वी कैन से लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू लैम्डा, तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब हो गया इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, नॉट ए वेक्टर फॉर्म। तो कोऑर्डिनेट्स में अपन ऐसे लिखेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल फॉर्मूलास। तो x1, तो इसके अंदर मैं ये कह दूंगा x1 कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन इज ए पॉइंट ऑन लाइन, इज ए पॉइंट ऑन द लाइन। और ये जो a कॉमा बी कॉमा सी है, इनको मैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज लिखूंगा। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ए कॉमा बी कॉमा सी डायरेक्शन रेशियो हो गया, और ए आई के बी जे के प्लस सी के पैरेलल वेक्टर हो गया। एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट हो गया, और एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के, ये जो है मेरे पास में ये पोजीशन वेक्टर हो जाए। तो ये इस तरह से। फिर उसके बाद में ये एक पॉइंट लिया हुआ है कि अगर कोई भी पॉइंट आपको अगर एज्यूम करना हो किसी भी लाइन के ऊपर, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। दिस इज लेट्स से इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से वापस वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आता है, एक्स इक्वल टू ए लैम्डा प्लस एक्स वन हो जाएगा, वाई इक्वल टू बी लैम्डा प्लस वाई वन हो जाएगा, और जेड इक्वल टू सी लैम्डा प्लस जेड वन आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट अगर आपको लाइन के ऊपर लेना है तो इस तरह से आप ले सकते हो, लैम्डा ए प्लस एक्स वन लैम्डा बी प्लस वाई वन प्लस लैम्डा सी प्लस जेड वन इक्वल टू लैम्डा पुट करके, लैम्डा पुट कर लो, म्यू कर लो, टी कर लो, कुछ भी अपन रख सकते हैं, एस कर लो, कोई भी पैरामीटर। यहाँ पर जो लैम्डा है वो एक पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब ये होता है कुछ कोई भी कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ये ध्यान में रख लेना। इसमें क्या है कि 1,0,0 डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी भी डिस्कस, 0,1,0 डायरेक्शन रेशियो, 0,0,1 डायरेक्शन रेशियो, और तीनों ही जो लाइन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ऑल थ्री लाइंस आर पासेस थ्रू 0,0,0 की 1 पॉइंट ओरिजिन। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी 2 पॉइंट है। अब 2 पॉइंट और 1 पॉइंट में कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हो लाइन के ऊपर, एक पॉइंट दे रखा है मेरे को ए एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, और एक पॉइंट मेरे को बी दे रखा है दैट इज एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ऊपर वाले केस को और इस केस को। ऊपर वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि बी वेक्टर गिवन है, यानी पैरेलल वेक्टर गिवन है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। यहाँ डायरेक्शन रेशियो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 2 पॉइंट से। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, जब भी आपको 2 पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जब हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज आर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, x2 माइनस एक्स वन कॉमा वाई टू माइनस वाई वन कॉमा जेड टू माइनस जेड वन। तो ए बी सी की जो वैल्यू है वो इससे रिप्लेस हो जाएगी। तो बस वही है, बाद बाकी सेम एज इट इज है। यानी वेक्टर फॉर्म में जब लाइन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म,
दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन दी वेक्टर फॉर्म के अंदर, लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर बी वेक्टर, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। और ये जो मेरे पास में कार्टेशियन फॉर्म हो गया, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। Got it? तो ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब हो गया डायरेक्शन रेशियोज, यानी x2 माइनस x1 आई केप, y2 माइनस y1 जे केप प्लस z2 माइनस z1 के केप। तो डायरेक्शन रेशियोज हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। फिर या तो डायरेक्शन रेशियो गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, उन 2 पॉइंट से आप डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन देखिए जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रेट लाइन। अब देखिए आपको 2 स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक ये दे रखी है और ये दे रखी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, और ये जो लाइन है इसको मैं मान लेता हूँ आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। अब देखिए लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इन 2 स्ट्रेट लाइन के, यानी कि b1 वेक्टर जो है रिप्रेजेंट करता है लाइन 1 की डायरेक्शन को और b2 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन 2 की डायरेक्शन को। कहने का मतलब ये है मेरे पास में कि ये एक लाइन L1 है और ये एक लाइन L2 है। दिस इज लाइन नंबर L2 है। अब इस लाइन L1 की जो डायरेक्शन रेशियोज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है B1 वेक्टर को, और L2 लाइन की जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है B2 वेक्टर से। और जब भी 2 वेक्टर, अब मेरे को निकालनी है एक परपेंडिकुलर लाइन जो इन दोनों को ही परपेंडिकुलर हो, तो सबसे पहले तो आपको वो वेक्टर निकालना पड़ेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो मैं ये कहूंगा कि डायरेक्शन और वेक्टर परपेंडिकुलर टू given line, given lines, that is equal to nothing, b vector equal to b1 vector cross product b2 vector। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही परपेंडिकुलर वेक्टर देता है। तो b1 वेक्टर इस लाइन की डायरेक्शन होगी, b2 वेक्टर इस लाइन की डायरेक्शन होगी, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही आपका परपेंडिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा। तो मैं सबसे पहले तो b वेक्टर निकाल देता हूं। तो बी वेक्टर इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट आप इजीली निकाल सकते हो, आप सबको पता है आई केप जे केप के केप, और b1 वेक्टर हो गया 2 7 माइनस 3, दिस इज द 2 माइनस 2 5, व्हेन वी विल सिंप्लीफाई दिस विल बिकम 12 सॉरी 35 और माइनस 6, 35 माइनस 6 करोगे तो 29 आई केप हो गया। नेक्स्ट जे केप से करोगे तो 2 10 10 प्लस 6 तो माइनस 16 जे केप हो गया, और के से करोगे तो माइनस 4 माइनस 14 that is a minus 18 के पास जाएगा। तो दिस इज द बी वेक्टर, दैट इज द परपेंडिकुलर वेक्टर। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखा है आपको 1 0 -1, 1 0 -1 एंड डायरेक्शन रेशियोज, मैं अभी यहाँ डायरेक्शन रेशियो लिख रहा हूँ डायरेक्ट, एंड डायरेक्शन रेशियो आर ये 29 माइनस 16 और माइनस 18, 29 माइनस 16 माइनस 18, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो x माइनस x1 करेंगे तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 29 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन माइनस 16 इक्वल टू z माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन माइनस 18, और व्हेन यू सिंप्लीफाई तो x माइनस 1 अपॉन 29 इक्वल टू y अपॉन माइनस 16 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन माइनस 18। तो ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी इन द कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। नॉट इट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि अब आपको अगर परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के पहले परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करो। ये अपन प्लेन के अंदर भी देखेंगे, इसमें भी देखते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर जब भी निकालना हो तो सीधा क्रॉस प्रोडक्ट कर लो आप, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर दे देगा।
फिर एक और क्वेश्चन देयर का फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन दिस लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस। तो इसका मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट ये बता दिया कि लेट x minus 1 upon 2 equal to y plus 1 upon minus 3 equal to z, and let us consider this is equal to lambda। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, y इक्वल टू आ गया माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, एंड z इक्वल टू आ गया लैम्डा। सो लेट एनी पॉइंट on given line is a 2 lambda plus 1, minus 3 lambda minus 1, lambda। ये एनी पॉइंट हो गया लाइन के ऊपर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा पुट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म है लाइन की। नाउ डिस्टेंस दे रखी है फ्रॉम पॉइंट 1 माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो लेट गिवन पॉइंट, एक पॉइंट और दे रखा आपको, गिवन पॉइंट जो हो गया वो बी हो गया 1 माइनस 1 0, और गिवन दैट ए बी इक्वल टू रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ए बी इक्वल टू 4 रूट 14 है। ए बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, और दिस इज गिवन एज 4 रूट 14 होल स्क्वायर। तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से देखना जरा, 4 लैम्डा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये शायद 14 लैम्डा स्क्वायर याद होगा, 16 टाइम्स ऑफ 16 इंटू 14। जब आप सिंप्लीफाई करोगे 14 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया। ध्यान में ये रखना है कि आपको प्लस और माइनस दोनों लेने हैं, कहीं आप प्लस 4 लेके बैठ जाओ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा फिर आपको। तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 4 बोथ आर पॉसिबल, यानी कि ऐसे 2 पॉइंट पॉसिबल है इसमें। अब जब लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया, तो एक बार लैम्डा इक्वल टू प्लस 4 लेके पॉइंट फाइंड आउट कर लो। तो फर्स्ट केस वी विल टेक इफ लैम्डा इक्वल टू प्लस 4, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस 4, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट इज ए 2 इंटू 4 प्लस 1, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 1, 4 ओनली। तो दिस विल बिकम ए 9 माइनस 13 4, एक तो ये पॉइंट होगा ऑन दिस लाइन। एंड सेकेंड नंबर हम निकाल देंगे इफ लैम्डा इक्वल टू माइनस 4, अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस 4 आ रही हो तब पॉइंट क्या होगा, देन पॉइंट इज ए 2 इंटू माइनस 4 प्लस 1, माइनस 3 इंटू माइनस 4 माइनस 1, माइनस 4, पॉइंट यहां से ले रहे हैं ना, ये वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में पुट करिए। यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 8 प्लस 1 करोगे माइनस 7, ये आ जाएगा 12 माइनस 1 11 और माइनस 4, माइनस 7 11 और माइनस, करेक्ट। तो पहले आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लो जो गिवन कंडीशन है, उस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें आपको पहले लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो भी गिवन कंडीशन है उससे, और फिर आप वापस पुट करोगे तो वो पॉइंट आ जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी 3D का क्वेश्चन। ये बोल रहा है गामा एक रियल नंबर है सच दैट द लाइंस एंड लाइंस आर इंटरसेक्ट, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, ये सब क्वेश्चन बोल रहा है। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से, यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट मिलेगा क्या, L1 और L2। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन में बोल रहा है R1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, वो R1 निकाल लेते हैं अपन पहले। तो व्हाट इज दी R1 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, पहला ऑप्शन यही दे रखा है गामा इज इक्वल टू। तो सबसे पहले तो अपन ये कर लेते हैं लेट x प्लस 11 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 21 अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस 29 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ये तो हमने ये एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा माइनस 11, y इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा माइनस 21, और z इक्वल टू आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 29। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लाइन। एंड x सेकेंड लाइन क्या है, x प्लस 16 अपॉन 3
इक्वल टू वाई प्लस 11/2 इक्वल टू जेड प्लस 4/गामा. दिस इज इक्वल टू, लेट अस कंसिडर म्यू. म्यू क्यों? क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी एज्यूम कर चुका हूं मैं, तो यहाँ म्यू ले लेता हूँ. यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से x इक्वल टू आएगा 3 म्यू माइनस 16, y इक्वल टू आ जाएगा 2 म्यू माइनस 11 और z इक्वल टू आ जाएगा गामा इंटू म्यू माइनस 4. नाउ क्वेश्चन इज से कि बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट. So we can say if both lines are intersect, both lines are intersect. If both lines are intersect, तो definitely we have common point. x इक्वल टू x होगा, y इक्वल टू y होगा, z इक्वल टू z होगा, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है वो एक ही जगह जाके लाई करेंगे, ऑब्वियसली बात है. अगर बोथ पॉइंट आर इंटरसेक्ट, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट, तो अगर ये 2,1,3 है तो ये इस लाइन पर भी 2,1,3 होगा, यानी कि दोनों पॉइंट सेम होंगे, बोथ आर दी कॉमन पॉइंट. और अगर बोथ आर कॉमन पॉइंट तो x कंपोनेंट इक्वल होगा लैम्डा माइनस 11 जो वो इक्वल होगा 3 म्यू माइनस 16 के, 2 लैम्डा माइनस 21 जो है वो इक्वल होगा 2 म्यू माइनस 11 के, और सिमिलरली 3 लैम्डा माइनस 29 जो है वो इक्वल होगा गामा म्यू माइनस 4 के. तो यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, व्हेन वी विल सिंप्लीफाई तो दिस विल बिकम 3 म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 5 आ जाएगा एक. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा, और इसको इधर भेजोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, और 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए तो म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू -5 हो गया. ये मेरे पास में सेकंड इक्वेशन आ गई. और थर्ड इक्वेशन यहां से आ जाएगी तो गामा म्यू आ जाएगा, और माइनस का 3 लैम्डा हो गया, 4 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो -25 आ जाएगा. इसको मैं थर्ड नंबर इक्वेशन दे देता हूँ. अब बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बाय सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2. जब आप इक्वेशन 1 और 2 को आप सोल्व करोगे तो वी गेट लैम्डा और म्यू की वैल्यू बता दो कितनी आएगी. आई थिंक लैम्डा बोथ आर सब्ट्रैक्ट ओनली ना, दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 म्यू 2 म्यू हो गया, 2 म्यू इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो म्यू इक्वल टू 5 आ जाना चाहिए. तो 2 म्यू इक्वल टू, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा 5, तो सोल्व कर लेना, एंड म्यू इक्वल टू 5 आएगा तो लैम्डा इक्वल टू कितना 10 आ रहा होगा फिर, तो लैम्डा इक्वल टू 10. अब म्यू और लैम्डा की वैल्यू आप पुट कर दो. Put mu and lambda in third equation. When you put mu and lambda in third equation, so we will get gamma into 5 minus 3 into lambda equal to 10 है, 10 इक्वल टू -20. तो गामा की वैल्यू बता दीजिए यहाँ से. तो गामा इक्वल टू 35 1 आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा. ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया जिसमें गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, गामा इक्वल टू 1. अच्छा, गामा इक्वल टू 1 हो गया, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब आप दो चीजें मुझे बता दो, एक तो आप बताओ मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक मुझे बताओ दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज. सो नाउ 1 तो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1, -1, 1, दैट्स गुड. तो जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये जो लेमडा और म्यू है ये कहीं पर भी पुट कर दो, आप चाहें तो ये इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो. तो फर्स्ट में अपन पुट कर देते हैं लेमडा की वैल्यू. ये जो पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रखा है वो R1 से रिप्रेजेंट कर रहा है. इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि R1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो R1 क्या होगा, तो R1 इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ लैम्डा -11. तो लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है 10 आ गई, तो 10 -11 कोमा सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पुट करोगे तो 2 इंटू 10 -21, 2 इंटू 10 -21, और कोमा this is the 3 lambda -21, so this is the 3 into 10 -29. This will become R1 -1, -1, -1 only. So this is the point of intersection. एक चीज हो गई.
सेकेंड थिंग, एक चीज और मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि व्हाट इज द B1 वेक्टर, दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन B1। आगे देखते हैं वैसे पूछा क्या इसने। ए पॉसिबल चॉइस ऑफ एन कैप, एन कैप क्या है? दिस इज द यूनिट वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग, सॉरी यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ L1 एंड L2। ये आपके पास में पिछले वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो एन कैप यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट अगेन, तो दिस विल गिव क्रॉस प्रोडक्ट। तो वी कैन राइट डाउन लेट डायरेक्शन रेशियो, तो वर्ड गलत हो जाएगा, B1 B2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं मैं। तो मैं ये लिख देता हूं वेक्टर अलोंग लाइन L1, इसको मैं B1 वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा। और जो B1 वेक्टर होता है आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दिस इज द x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो a b c 1 2 3, तो B1 वेक्टर हो गया i k प्लस 2 j k प्लस 3 k k। और सेकेंड नंबर हम बात करेंगे वेक्टर अलोंग लाइन L2, अलोंग लाइन L2, इसको मैं B2 वेक्टर लिखूंगा। और B2 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी सेकंड लाइन के अंदर, ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है 3 2 गामा, तो 3 i k प्लस 2 जे के प्लस गामा के, और गामा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो दिस इज इक्वल टू 3 i कैप 2 जे कैप प्लस के। अब हम बात करते हैं एन कैप की। नाउ एन कैप इज नथिंग, दैट इज द, अच्छा एन वेक्टर निकालो पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी विल फाइंड आउट नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर तो एन वेक्टर आएगा, एन वेक्टर इक्वल टू B1 क्रॉस B2, कैप बाद में निकालेंगे यूनिट वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल एन वेक्टर B1 क्रॉस B2, क्रॉस प्रोडक्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, i j k 1 2 3 और 3 2 गामा, गामा गामा मतलब 3 2 1 हो गया, सॉरी। व्हेन यू सिंप्लीफाई 2 माइनस 6 करोगे, 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4 i कैप हो गया, माइनस j कैप इंटू 1 माइनस 9 करोगे माइनस 8, तो प्लस 8 k कैप हो गया। और इसमें करोगे तो 2 माइनस 6 माइनस 4, तो सॉरी j कैप, यहाँ j कैप आ जाएगा, 2 क्या था 1 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 8, और ये आ जाएगा 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4 इंटू के कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर बट ओनली। तो एन केप क्या होगा, व्हाट इज द एन केप? तो एन केप इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दिस इज द माइनस 4 i केप प्लस 8 j केप और माइनस 4 k केप, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, वी कैन से राइट डाउन माइनस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 4 स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी मैं माइनस 4 कॉमन ले सकता हूँ, दिस इज आई के माइनस 2 जे के और प्लस के डिवाइडेड बाई दिस इज 4 इंटू ये रूट 6 आ जाएगा, तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज द पॉसिबल चॉइस ऑफ एन के, यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट 6 आई के और माइनस 2 अपॉन रूट 6 जे के प्लस 1 अपॉन रूट 6 के। अब देखो ना, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ मैंने नेगेटिव साइन लिया है, हमारा आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव साइन में आ रहा है, बट यहाँ नेगेटिव साइन में कोई ऑप्शन नहीं दे रहे, नेगेटिव साइन में ऑप्शन नहीं दे रहेगा, बट फिर भी हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन ही आएगा। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। अब मैंने क्या किया था, यहाँ से B1 क्रॉस B2 किया। क्यों किया भाई आपने B1 क्रॉस B2? मैं B2 क्रॉस B1 भी तो कह सकता हूँ ना, ये दिया हुआ थोड़ी है कि B1 पहले लिखना है B2 पहले लिखना है। अगर आप B2 क्रॉस B1 करोगे तब ये साइन प्लस में आ जाएगा, फिर सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ पर ये जो रोज 2 रोज जो है इंटरचेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो आप B2 क्रॉस B1 भी कर सकते हो, तो B2 क्रॉस B1 करोगे तो आपके पास में प्लस साइन आ जाएगा। गॉट इट? तो ये जो एन केप है ना, और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको परपेंडिकुलर टू प्लेन निकालना है, और जब भी आप किसी वॉल को देखते हो, वॉल के परपेंडिकुलर में दो वेक्टर हो सकते हैं, दो डायरेक्शन हो सकती है। एक तो डायरेक्शन वो हो सकती है जो आउटसाइड ऑफ प्लेन, और एक हो सकती है इनसाइड ऑफ प्लेन, आउटसाइड ऑफ प्लेन और इनसाइड ऑफ प्लेन।
यानी एक रो तो आपके फ्रंट में हो सकती है और एक रो आपसे अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। कोई प्लेन है आपके सामने, अगर वॉल है, आप इसको इमेजिन कीजिए, एक आपके सामने वॉल है, वॉल से एक रे तो आपके सामने आ रही है कमिंग, और एक रे है जो वॉल से जा रही है आउटसाइड। तो वो दो वेक्टर हो गए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस माइनस साइन दोनों आ सकते हैं। यानी कि अगर माइनस ऑप्शन देता तो भी सही होता, और प्लस ऑप्शन दे रहा है तो भी सही है, ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें एन केप के अंदर। तो एन केप की वैल्यू जो है वो मेरे पास में क्या आ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन। तो क्यू का 4 आ रहा है, ए का 3, क्यू का 4, ए का 3, क्यू का 4। अभी बी, ए और सी दो ऑप्शन पड़े हैं मेरे पास में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओ आर वन वेक्टर, अच्छा ओ आर वन वेक्टर तो निकाल लिया होगा आपने डायरेक्ट ही। आर वेक्टर कहाँ गया, आर वन पॉइंट, पॉइंट ये रहा, -1 -1 1। तो ओ आर वन वेक्टर हो जाएगा माइनस आई के माइनस जे के माइन प्लस के, तो फर्स्ट आ जाएगा। तो ओ आर वन वेक्टर का ऑप्शन 1 नंबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ओ आर वन वेक्टर बता देंगे। ओ आर वन वेक्टर कुछ नहीं है, पोजिशन वेक्टर है। दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर वन, माइनस ए के माइनस जे के प्लस के। ठीक है, ये ओ आर वन हो गया। तो यहाँ से भी 1 और 1 इसमें भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़िए। पॉसिबल वैल्यू ऑफ ओ आर वन वेक्टर डॉट एन केप। अब ये आप मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ आर वन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करोगे एन केप को, ओ आर वन वेक्टर क्या है, -1, तो माइनस, तो यहाँ पर दोनों साइन ले लेता हूँ मैं, माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, -1 इंटू 1/√6 एक हो गया, फिर -1 इंटू -2/√6 एक हो गया, और ये +1 इंटू 1/√6 एक हो गया। तो -1 +1 कैंसिल आउट हो गया, 2/√6 आ सकता है। दिस इज द +-2/√6 लिख देता हूँ मैं। एक्चुअली में तो ये प्लस माइनस दोनों होंगे, ये आप कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। 2/√6 कुछ नहीं है, दिस इज द √2/3 होगी। प्लस और माइनस दोनों में ही आएगा ये, √2/3 यानी फिफ्थ ऑप्शन आ जाएगा। इसका आंसर आएगा सी, यानी कि इसका फिफ्थ आ गया ये सी। गॉट इट। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, जिसमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो क्रॉस प्रोडक्ट करके, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूछना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस तो कोई पूछेगा नहीं आपसे। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है एंगल बिटवीन द टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन वही होता है जो एंगल बिटवीन देयर करेस्पॉन्डिंग वेक्टर होता है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्टेड वेक्टर। मैं डायरेक्टेड वेक्टर लिख रहा हूं, डायरेक्टेड में जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर पैरेलल वेक्टर भी वर्ड ले यूज में ले सकते हो, और पैरेलल वेक्टर। अब एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन वेक्टर, और एंगल बिटवीन वेक्टर आपको अच्छे से पता है कि cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। वो अपन उस फॉर्मूले में वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अब r वेक्टर इक्वल टू, अगर मैं एक इक्वेशन ये ले लेता हूँ, लेट टू लाइन, इक्वेशन ऑफ टू लाइन क्या हो जाएगी, लेट से इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आर, इक्वेशन दो लाइन की इक्वेशन में ये ले लेता हूँ, आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, एंड सेकंड इक्वेशन इसको मैं L1 नाम दे रहा हूँ, और सेकंड इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर, इसको मैं L2 दे रहा हूँ, L1 और L2। b1 वेक्टर फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, b2 सेकंड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये दो लाइन है मेरे पास में, एक L1 है और एक L2 है। L1 लाइन की डायरेक्शन को B1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, L2 की लाइन की डायरेक्शन को B2 वेक्टर से रिप्रेजेंट। वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से एंगल बिटवीन देम निकालोगे तो cos थीटा इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट B2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन हमेशा ही वही होता है जो एंगल बिटवीन देयर वेक्टर होगा, डायरेक्टेड वेक्टर होना चाहिए, बट ये ध्यान रखना है आपको। यानी आपको, अच्छा इसमें ए और ए डैश ले लिया मैंने, A1 A2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको A1 A2 का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि A1 और A2 तो सिर्फ पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, उसको A1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, उसको A2 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
लेकिन डायरेक्शन तो B1 और B2 से रिप्रेजेंट होती है, इसमें डायरेक्शन लेनी है आपको B1 और B2, तो इससे आप निकाल सकते हो। अच्छा, कार्टेजियन फॉर्म में अगर लाइन हो तो, इफ लाइन आर इन कार्टेजियन फॉर्म, तो फॉर कार्टेजियन फॉर्म ऑफ लाइन, अगर लाइन कार्टेजियन फॉर्म में हो उस केस में कोई दिक्कत नहीं, लाइन इक्वेशन ये हो जाएगी x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। दिस इज लाइन नंबर वन। और सेकंड नंबर इक्वेशन x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। दिस इज लाइन नंबर टू। और एंगल बिटवीन देम आप जब निकालोगे तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू मैं ये लिखूंगा, होगा सेम ही b1 डॉट प्रोडक्ट b2, बट एयर b1 वेक्टर हो गया a1 i के b1 j कैप c1 k कैप a2 i के b2 j कैप c2 k कैप। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो a1 a2 b1 b2 ये सेम वही है फॉर्मूला वेक्टर वाला, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइन। फिर इसी में वही कॉन्सेप्ट आता है सेम टू सेम, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन b1 डॉट b2 इक्वल टू 0, b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। और अगर कार्टेजियन फॉर्म है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 c2 इन सबको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और वो आप लाइन की इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उससे निकाल सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज ऑफ पॉइंट। यहाँ पर तीन क्वेश्चन बनते हैं इसमें, देयर इज द टोटल 3 क्वेश्चन विल बी फॉर्म। और इसके लिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन की हेल्प से अपन बेसिकली देखते हैं कि कैसे अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, और कैसे अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, और कैसे अपन इमेज फाइंड आउट करेंगे। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट एंड लाइन के लिए। ये एक्चुअली में तो टॉपिक तो ये है हमारे पास में, पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट एंड लाइन। तो पॉइंट एंड लाइन के रेस्पेक्ट में टोटल 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये जो P पॉइंट है और यहाँ पर ये कोई Q पॉइंट मान लीजिए, तो ये जो Q पॉइंट है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, दिस इज कॉल्ड एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर? नेक्स्ट, व्हाट इज दिस डिस्टेंस PQ? एंड इफ दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर देन व्हाट इज द इमेज ऑफ पॉइंट P? तो इमेज ऑफ पॉइंट P डेफिनेटली P डेश हो जाएगी। तो व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इमेज? ये आपको ध्यान में रखना। मतलब इमेज का मतलब ये हो गया, जैसे अब लाइन है, लाइन को एक प्लेन मिरर मान सकते हो। अगर लाइन को मैं प्लेन मिरर मानूंगा तो ये जो लाइन है, यहाँ से जो रे आएगी सीधी पॉइंट P से जो रे आएगी वो किसी न किसी पॉइंट पे तो जाके इंटरसेक्ट करेगी ना, परपेंडिकुलर। ये व्हाट इज दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसकी जो इमेज किसी कोऑर्डिनेट पर बनेगी वो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी। और इसके लिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है, उस एक क्वेश्चन की हेल्प से अपन समझते हैं कि कैसे अपन इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। राइट, देखना जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू दिस टू द जॉइनिंग टू द join of points this to the line join of points, to the line join of points B and C। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें तो एक्चुअली फुट ऑफ परपेंडिकुलर वर्ड ही लिखा है मैंने, और साथ में क्वेश्चन को ऐड कर लेता हूं। एंड ऑल्सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इमेज ऑफ पॉइंट ए। तो देखना जरा क्वेश्चन को किस तरह से अपन क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को मान लीजिए ये कोई भी एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट दे रखा है B, जिसका नाम है 4,7,1, और एक पॉइंट है मेरे पास में C दैट इज 3,5,3। सबसे पहले तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन BC क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इस BC लाइन की इक्वेशन निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन BC आप जब फाइंड आउट करोगे तो दिस इज द इस फॉर्मूले को अपन यूज में लेंगे, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4
इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 5 माइनस 7 इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, और you can write down this is x minus 4 upon minus 1, y minus 7 upon minus 2 और z minus 1 upon 2. Let us consider this is equal to lambda. यहां से जब आप निकालोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस 4, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 लेमडा प्लस 7 और z इक्वल टू आ गया 2 लेमडा प्लस 1. दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस गिवन लाइन. मैं ऑलरेडी आपको ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं. तो लेट एनी पॉइंट ऑन लाइन BC, और इसको मैं Q से ABC D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ माइनस लेमडा प्लस 4 कोमा माइनस 2 लेमडा प्लस 7 कोमा 2 लेमडा प्लस 1. तो ये एक चीज हो गई. एक चीज और बताओ मुझे अब इसमें, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन BC लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हमेशा डिनोमिनेटर वाले माइनस 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 2, और ये जो माइनस 1 माइनस 2 है ये मेरे पास में क्या है, लेट से A1 कॉमा B1 कॉमा C1 है. ये यानी A1 B1 C1 की वैल्यू ये है. अब ये तो एक कोई पॉइंट हो गया D, और A कोई पॉइंट है. अब क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए. यहाँ पर कोई पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,0,3, और यहां से एक मैंने रे डाल दी और ये लाइन यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही है. ये पॉइंट मेरे पास में D है. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट D, ये आपको पूछा है. ऑलराइट, तो करना कुछ नहीं है. और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फोटो, ये D से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. इसके डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 हो गया. अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AD. ये कोई भी D पॉइंट हो गया ना, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने ये लिए है, क्या माइनस लेमडा प्लस 4, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, टाइम ओवर हो रहा है. तो पॉइंट हो गया माइनस लेमडा प्लस 4 कोमा माइनस 2 लेमडा प्लस 7 कोमा 2 लेमडा प्लस 1. अब मुझे ये बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AD. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AD लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अपन कैलकुलेट करेंगे. BC लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला, वही सेम टू सेम, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. BC लाइन के लिए मैंने 3 माइनस 4 5 माइनस 7 3 माइनस 1 लिया था. सिमिलरली इसमें भी आपको यही सेम टू सेम काम करना है. AD लाइन में भी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करना है. बट यहाँ पर मैं ये लिखूंगा, दैट इज द माइनस लेमडा प्लस 4 माइनस 1 माइनस 2 लेमडा प्लस 7 माइनस 0 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 3. और जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास में ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 3 कोमा माइनस 2 लेमडा प्लस 7 और कोमा 2 लेमडा माइनस 2. और ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इनको मैं A2 कोमा B2 कोमा C2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ऑडिट, तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ABC निकाल लिया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AD निकाल लिया, और एक कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लिया D. लैम्डा बिलोंग्स टू R है, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर है. तो ये कोई भी एनी पॉइंट हो गया इस लाइन BC के ऊपर. अब सिंस, अब मैं ये तो कह सकता हूं ना, सिंस लाइन AD इज परपेंडिकुलर टू BC, जो AD लाइन है वो परपेंडिकुलर है BC के, ये BC लाइन है. अब चूंकि D पॉइंट तो फूटो परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली बात है AD लाइन फूटो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी. और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो दैट मींस वी कैन से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब उससे आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि लेमडा हमारे पास में अननोन है, और इसी लेमडा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. और जब आप ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे तो A1 A2 दैट मींस माइनस 1 इंटू माइनस लेमडा प्लस 3, और B1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस
-2 इंटू B2 की वैल्यू आ जाएगी -2 लेमडा प्लस 7, और C1 की वैल्यू आ गई 2, और ये आ जाएगी 2 लेमडा -2। मुझे लेमडा की वैल्यू बता दो फास्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? तो ये आ जाएगा लेमडा -3 प्लस 4 लेमडा -14 और प्लस 4 लेमडा -4 इक्वल टू 0। 4 4 8, 8 प्लस 1 9 लेमडा, और ये 18 -3 इक्वल टू 15 आ जाएगा। लेमडा इक्वल टू 15/9 होना चाहिए। 15/9 करोगे तो 5 से 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 5/3 आ जाएगा। ये लेमडा की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब ये जैसे लेमडा की वैल्यू 5/3 आ गई, तो अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो 21 आएगा सर। क्या आ रहा है? हाँ 21, सॉरी, कितना आ रहा है? 21 आ गया, ओके। तो 9 लेमडा इक्वल टू 21, और 21/9 करोगे तो 7 3 जा 7/3 आ जाएगा। लेमडा इक्वल टू आ गया 7/3। गुड। नाउ इफ लेमडा इक्वल टू 7/3, तो व्हाट इज द पॉइंट डी? तो पॉइंट डी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज डी, और डी के अंदर आप लेमडा पुट कर दो। लेमडा डी के माइनस लेमडा प्लस 4, दिस विल बिकम -7/3 प्लस 4, कॉमा -2 लेमडा प्लस 7, तो -2 इंटू 7/3 प्लस 7, और कॉमा 2 इंटू 7/3 प्लस 1, तो दिस विल बिकम डी पॉइंट। बस यही इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाएगा ये 5/3, 21 -4 करोगे तो 7/3 14, और ये आ जाएगा 3 प्लस 14 17/3 ना, दिस इज 17/3। तो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहां से मैं ये कह सकता हूँ दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल बिकम 5/3 7/3 और 17/3, 5/3 7/3 और 17/3। अब आगे आपको जो भी पूछा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। नाउ क्वेश्चन इज आस्क व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है, दैट इज AD ओनली। AD की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर देंगे। D -A, तो 5/3 -1 का होल स्क्वायर, 1,0,3 है ना, 1,0,3 ओके, कॉमा प्लस 7/3 -0 का होल स्क्वायर, और प्लस दिस इज द 17/3 -3 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाए। अच्छा, अब इमेज का पूछा है, तो फॉर इमेज वी कैन से पॉइंट D, या फिर ऐसे करते लेट इमेज इज, इमेज को मैं मान लेता हूं A डेज, और इसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया लेट से अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। सो वी कैन से इमेज इज दिस। तो फॉर इमेज, ये जो पॉइंट D है, पॉइंट D बिकम्स मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट D बिकम्स मिड पॉइंट ऑफ A एंड A डेज। मतलब ये है, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और इसकी इमेज अगर इधर कहीं बन रही है ए पॉइंट की, जैसे ये ए डेस इसकी इमेज है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अब चूंकि लाइन तो मिरर है, और ये आपको अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, तो ए डी और ए डेस डी दोनों इक्वल होंगे, तो डी विल बिकम मिड पॉइंट। डी विल बिकम मिड पॉइंट, तो मैं ये कह दूंगा डायरेक्ट ही अल्फा प्लस 1/2 की वैल्यू 5/3 हो जाएगी, बीटा प्लस 0/2 की वैल्यू सेकंड 7/3 हो जाएगी, और गामा प्लस 3/2 की वैल्यू 17/3 हो जाएगी। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, अल्फा बीटा वैल्यू निकाल लेना। तो अल्फा की वैल्यू शायद कितनी आ रही है, 7/3 आ रही होगी, और बीटा की वैल्यू 14/3 आ जाएगी, और गामा की वैल्यू 34, 34 -9 करोगे तो ये 25/3 आ जाएगी। नॉट इट। तो ये कॉन्सेप्ट है। सो इमेज क्या हो जाएगी, 7/3 14/3 25, ये इमेज होगा।
अब देखो लाइन के अंदर विद रेस्पेक्ट टू लाइन आप इमेज निकालोगे तो उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन प्लेन में जब अपन इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन लाइन में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लाइन में कॉन्सेप्ट ही है। तो एडवांस के अंदर अगर इमेज लाइन का क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ यहां से ही बन के आएगा। अगर इमेज और फुटो परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आएगा तो वो लाइन से ही बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि ये जो लाइन, पहले लाइन गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, फिर परपेंडिकुलर लाइन एडी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे डायरेक्शन रेशियोज का, डॉट प्रोडक्ट सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो वी आर गेटिंग लैम्डा वैल्यू। फिर लैम्डा से फुटो परपेंडिकुलर आएगा, फुटो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, फिर वहां से आपको मिड पॉइंट आ जाएगा, और मिड पॉइंट आने के बाद वो सोल्व कर लेना आप लोग। राइट, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखें। अच्छा, कल आपका टेस्ट भी है, अच्छे से आपको टेस्ट देना है, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है कि ओनली आपको 7 और 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करना, मंडे को तो पेपर डिस्कशन करेंगे अपन, और ट्यूसडे को रिमेनिंग पोर्शन सोल्व करके और आगे का चैप्टर अपन स्टार्ट कर देंगे। प्लेन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट? और ये पूरा नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेना। कल अपन आगे का पोर्शन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल मतलब ट्यूसडे को। गॉट इट? थैंक यू सो मच। If any kind of doubt, then you can ask.